Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes in English from ML Convent Gopapa School. Students, in your class nowadays we are doing with the pro section. We are going through the second chapter, that is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. We know very well that this chapter that has been extracted in your syllabus is from the autobiography of Nelson Mandela, who was the first black president of South Africa. And this excerpt has been taken from his autobiography, Long Walk to Freedom, which include description of the inauguration ceremony, citations from his speech, his journey to being a freedom fighter, the struggle, along with a tribute to other freedom fighters and countless other peoples who fought for their freedom. In this is the third part of the chapter. In second part of the chapter, we have done how the white rule in South Africa started apartheid system during first decade of the 20th century, from 1901 to 1910, and it came to an end in the last decade of the 20th century, around 80 years. That system of apartheid that was started by the white rulers prevailed in South Africa. And after that, we have seen that he was giving his tribute to various freedom fighters who sacrificed their lives for the freedom of the country. And we are going through that part. Okay. Now we have done up to the second paragraph of page number 20. We have to start the third para. So please open your book on page number 20. Yes, page number 20, second para. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. Here you can see that Mr. Mandela is telling that the policy of apartheid had given deep wounds to the country as well as his people, the city of the country. apartheid का जो पॉलिसी था उसने साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के साथ साथ जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनके भी दिल पे काफ़ी गहरे घाव दिया है इस apartheid के सिस्टम ने. The operation policy scared many people and it will take a long time for them to move on. Okay, so the wounds that has been created by that policy is deep and lasting. गहरे घाव हैं और काफ़ी दिन तक रहने वाले घाव हैं. All of us will spend many years, if not
generations recovering from that profound hurt. Mean the hurt that has been given by that apartheid system will take many years to recover from it if it will not take generations. अगर पीढ़ियां नहीं लगेंगी, अगर इससे निकलने में हमें हमारी पीढ़ियां ख़त्म नहीं होंगी तो कम से कम कई एक साल तो लगेंगे ही. Okay, the author mentions that this hard time had its negative impacts, but it also exposed a lot of strong and but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the voter Sisselmus, the chief Luthilis, the Yusuf Dadus, the Bram Fissers, the Robert Sobukwe of our time. And you may find out that the picture of these all great personalities had also been included over there. आप देखेंगे कि यहाँ पे बुक में कई एक जो ग्रेट पर्सन्स हैं उनकी पिक भी दी हुई है. ओलिवर टाम्बो की, वॉटर सिसोलो की, चीफ लुथली की, यूसुफ दादू की, ब्राम फिशर की, रॉबर्ट सोबुकवे की. एंड रियली ऐसा होता है. इट हैपन्स whenever the world or whenever the country is facing the tough time, along with the challenges, along with the tough times, the country produces many soldiers, many great persons, many great personalities who have capacity to face that challenge. And it really exposes the fact that really necessity is the mother of invention. अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ग्रेट पर्सन्स की वैल्यू हमारे सामने नहीं आती, इसलिए ग्रेट पर्सन्स भी सामने दिखाई नहीं पड़ते. लगभग 80 इयर्स का ऑपरेशन पीरियड रहा साउथ अफ्रीका में. उस ऑपरेशन पीरियड ने ढेर सारे घाव दिए, नो डाउट. ऑपरेशन, ब्रूटलिटी, इन सब के साथ ही साथ एक बात और देखने को मिली. इसी दौरान ढेर सारे ग्रेट पीपल भी साउथ अफ्रीका के सिनेरियो में आए, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की उस सिस्टम को चेंज करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया. यहाँ पे कुछ एक लोगों का नाम दिया गया. वो ऐसे लोग हैं, दे आर मेन ऑफ सच extraordinary courage, wisdom and generosity. वो लोग extraordinary courage, extraordinary wisdom and extraordinary generosity के एपिटोम हैं. इनके पास बहुत बड़ा, ये साहसी थे, बुद्धिमान थे, जेनरस थे. that their like may never be known again. They had such a wisdom, they had such a generosity, they were so courageous कि उनके जैसा भविष्य में कभी कोई दूसरा देखने को नहीं मिलेगा. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. Very nicely said.
As I was telling before, discussing before some moments, लगता है जैसे कि इतने महान लोगों को दुनिया में आने के लिए, इतने इस हाइट के, इस करेक्टर के, इस हाइट के जो जिनके पास करेक्टर होता है, ऐसे लोगों को दुनिया में पैदा होने के लिए कुछ इस तरह के ऑपरेशन, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स की ज़रूरत होती है। अगर देश में सब कुछ सामान्य रहता है तो ऐसे महान लोग नहीं पैदा होते, या फिर शायद ऐसा होता होगा कि ऐसी स्थितियां होती होंगी, इसलिए लोग अपने आप को उन मुश्किलों के कारण, उनके अंदर मुश्किलों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, उनका विजडम लेवल बढ़ जाता है, उनकी जनरसिटी बढ़ जाती है, उनका करेज बढ़ जाता है। सामान्य स्थितियों में आपको इतने महान लोग, यू विल नॉट फाइंड सच अ ग्रेट पर्सन्स इन जनरल कंडीशंस। Even in India also you can find out. और हम ये कह सकते कि ग्रेट पर्सन्स तो हर समय पैदा होते रहे, लेकिन उनकी वास्तविक जो पहचान होती है वो एडवर्सिटीज़ में होती है। ग्रेट लोगों की पहचान एडवर्सिटी में होती है। ग्रेट लोग अपनी ग्रेटनेस को पोर्ट्रे करने के लिए उन्हें स्पेशल प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हर एक जगह एक बेहतर प्लेटफॉर्म होता है। जबकि सामान्य स्थितियों में अपने ग्रेटनेस को दिखाने के लिए बहुत कुछ ऐसे मौक़ों की खोज करनी पड़ती है। ऐसे मौके मिलते हैं तभी उस व्यक्ति की ग्रेटनेस दिखाई पड़ती है। जो कुछ भी हो, it required that level of unjust treatment to produce such great heroes. लेकिन ऑथर को ऐसा लगता है कि it seems that that level of unjust treatment is required to produce such great heroes. He says, my country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. Africa is rich in minerals and gems. अफ्रीका मिनरल्स और जेम्स में रिच है। अफ्रीका की धरती में that lie beneath its soil, अफ्रीका की धरती में ढेर सारे मिनरल्स, ढेर सारे जेम्स दबे पड़े हैं। But I have always known that its greatest wealth is its people. लेकिन नेल्सन मंडेला ने बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे कही कि the greatest wealth of any country is its people. किसी देश के सबसे जो ग्रेटेस्ट वेल्थ होती है वो वहाँ की पॉपुलेशन होती है, वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स होता है। फाइनर एंड ट्रूअर देन इट्स प्योरेस्ट डायमंड्स। ऐसे लोग जो कि फाइन होते हैं, ज़्यादा फाइन होते हैं, ज़्यादा ट्रू होते हैं, जो सबसे प्योर क्वालिटी का डायमंड होता है उससे भी ज़्यादा फाइन और उससे ज़्यादा ट्रू लोग होते हैं। जो ग्रेट, वही उन अगर ऐसे लोग हैं तो वही उस देश की सबसे बड़ी दौलत है। एंड नो डाउट, अगर ह्यूमन रिसोर्स किसी कंट्री का डेवलप्ड है तो तभी उस कंट्री के अदर रिसोर्सेज का प्रॉपर कंजम्पशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Nelson Mandela gained his strength to stand against the wrong from all the great nationalists he mentioned above, who have been risked their lives for freedom
and tolerated all treatment. He says कि यही वो कॉमरेड्स हैं, यही वो लोग हैं, यही वो कॉमरेड मीन अ कलीग और फेलो मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था का जो है साथ में काम करने वाला फेलो मेंबर। तो यही जो उनके साथी हैं जिनका नाम अभी ऊपर लिया गया, ओलिवर टाम्बू, यूसुफ दादू, वॉटर सिसोलू, चीफ लुथली, रॉबर्ट सोबुकवे, ब्रैम फिशर, ये जो ग्रेट पीपल हैं, इन्हीं ग्रेट पीपल से ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला ने करेज की मीनिंग सीखी। Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. Whenever it was time, whenever it was required, Nelson Mandela has seen various people risking and giving their lives to prove their ideas. अपनी आइडियाज़, अपनी सोच, अपने ओपिनियन के लिए नेल्सन मंडेला ने लोगों को देखा है, बार बार देखा है कि लोग अपनी जीवन को दांव पर लगा देते हैं। So he mentioned above who have risked their lives for freedom and tolerated till ill treatment but never stopped fighting. सब कुछ रिस्क कर दिया अपनी आइडिया के लिए, बट कभी भी बंद नहीं किया, फाइटिंग बंद नहीं किया, उसके लिए प्रयास करना बंद नहीं किया। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. Nelson Mandela mentions that he had seen men who remain stand. Here author tells that he has seen various men who remain stood up, several attacks, several tortures, but they did not broke up. लोगों के ऊपर अटैक्स हुए, टॉर्चर हुए, कितने कितने तरीके से टॉर्चर किया गया, but despite all that attacks, all that tortures, वो ब्रेक नहीं हुए। उन लोगों ने अपनी showing a strength and resilience, उन्होंने अपने स्ट्रेंथ को दिखाया, रेजिलेंस को दिखाया। रेजिलेंस द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप्स। रेजिलेंस का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह की हार्डशिप्स को से डील करने में आप सक्षम हैं और उसके प्रभाव से और उससे फिर से वापस फ्री हो सकते हैं। ये जो करेज के लोग थे, दीज ऑल men of courage, men of wisdom, men of generosity, faced all the attacks, all the tortures, but despite all the attacks, all the tortures, they did not break. Unimaginable resilience है इनके अंदर, unimaginable strength है इनके अंदर। I learned that courage was not the absence of fear, and in the course of time, Mr. Mandela learned कि करेज का मतलब व्यक्ति के अंदर डर का ना होना नहीं होता है, बट द ट्रम्प ओवर इट। डर का एब्सेंस नहीं होता, बल्कि डर के ऊपर जीत हासिल करना होता है। A person is courageous, it does not mean he is not fearful. It means that he has got trump over all the fears.
कि उसने अपने उस डर पे जीत हासिल कर लिया है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु conquers that fear. Here, very beautifully, Nelson Mandela tells that a brave man is not a man who does not feel any fear. ब्रेव मैन का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर डर नहीं है. भाई डर तो सबके अंदर होता है. ब्रेव मैन भी डरता है. तो ब्रेव मैन वो नहीं है जिसके अंदर डर नहीं है, बल्कि ब्रेव मैन वो है जिसने अपने डर पे जीत हासिल कर लिया है. अ ब्रेव मैन इज अ मैन हु हैज कॉन्कर्ड, ही वाज ओवरकम हिज फियर, जिसने अपने फियर पे जीत हासिल कर लिया. यस, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. Just like any other education, just like any other traits of character, a child is not born with any likeness or dislikes, any love or any hatred. किसी भी तरह की चीज़ों की तरह ही हम क्या लाइक करते हैं या क्या डिसलाइक करते हैं, हम किस चीज़ को पसंद करते हैं या किस चीज़ से घृणा करते हैं, ये चीज़ें हम पैदा होते ही बाय बर्थ नहीं होता. जैसी सोसाइटी होती है, जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं, जैसे जिस तरह की इन्वायरमेंट में, जिस तरह के जो है परिवेश में हम पैदा होते हैं, जिस तरह के परिवेश में हमारा पालन पोषण होता है, जिस तरह के परिवेश में हम बड़े होते हैं, हमारी लाइकिंग या डिसलाइकिंग, हमारा लव और हेट्रेड उसी के मुताबिक डिसाइड होता है. और लव और हेट्रेड इज डिसाइडेड बाय, इज गेट्स फिक्स्ड बाय द एनवायरमेंट in which we are brought up. We are not born with any trait of love or any trait of hatred for anything or for any idea or for any creed or for anything. No one is born hating another person because of the color of his skin. कोई इस चीज को किसी एक कलर के प्रति हेटेड को लेके कोई पैदा नहीं हुआ है, या उसके बैकग्राउंड को लेकर के और हिज रिलीजन को लेकर के. नो वन इज बोर्न हेटिंग. किसी दूसरे व्यक्ति के स्किन, कलर, एज, जेंडर, रिलीजन, इन सब के प्रति हेट्रेड को लेकर कोई आदमी पैदा नहीं हुआ. दिस ऑल थिंग इज टॉट बाय इट्स सोसाइटी वेयर द चाइल्ड इज ब्रॉट अप. जिस सोसाइटी में वो पैदा होता है, जहाँ उसका पालन पोषण होता है, वही सोसाइटी उन्हें वो सिखाती है. No one is inborn with hatred. The author's idea is that if people can be taught hatred, people must learn to hate. If they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Yes, as I'm telling you, that society teaches person to love or hate for any particular idea, for any particular creed, for any particular notion or anything. If hatred can be taught, no doubt, love also can be taught, love also can be infused. Because love comes to us more naturally than that of hatred. ऑथर कहता है कि अगर हम जहाँ पैदा हुए हैं, अगर वो सोसाइटी ने हमारे दिल में हेट करना सिखा दिया, तो नो डाउट वो लव करना भी सिखा सकती है. क्योंकि बिकॉज लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट. लव जो है वो नेचुरली ह्यूमन हार्ट तक पहुंचता है.
while hatred is not natural. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. As I told you, as we all know, that Mr. Mandela had passed his 30 years in the prisons of साउथ अफ्रीका itself. वो 30 साल तक साउथ अफ्रीका के जेलों में रहे. He recalls कि to be in the prison is really one of the grimmest times. तो grimmest time जो उन्होंने, जो कि बहुत ही सीरियस और ग्लूमी टाइम होता है, grimmest, प्रिजन के ग्रिमेस्ट टाइम में भी, इन देयर मोस्ट टेस्टिंग टाइम्स इन प्रिजन, व्हेन दे वर बीइंग ट्रीटेड ब्रूटली, जबकि उनके साथ ब्रूटली ट्रीटमेंट किया जाता था, मैंडेला वुड सी अ पिंच ऑफ ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस इन वन ऑफ द गार्ड्स. आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. मैंडेला ह्यूमैनिटी, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी जो कई एक गार्ड्स थे उनमें से एक के अंदर देखता है. यस, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. यद्यपि वो जो मर्सी था, जो ह्यूमैनिटी का सेंस था, वो कुछ एक समय के लिए आता है, कुछ एक सेकेंड के लिए आता है, लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑफ दैट, Mandela would see a pinch of humanity and kindness in one of the guards, and that was enough to keep him going. और वही एक सेकंड का जो कि ह्यूमैनिटी जो वो गार्ड के अंदर देखता है, वही उसके अंदर एक फीलिंग पैदा करता है कि वास्तव में ये काफ़ी है उसको आगे बढ़ाने के लिए. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Very nice. The goodness of man is such a type of flame that can be hidden for some time, but it can never be blown out. इंसान की जो अच्छाई है ना, वो कुछ समय के लिए दबाई जा सकती है, कुछ समय के लिए छिपाई जा सकती है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया सकता. मैन की अच्छाई एक ऐसी फ्लेम है, एक ऐसी आग है, एक ऐसी मसाल है जो कि कुछ समय तक के लिए भले ही छिपा ली जाए, बट इसको बुझाया नहीं जा सकता. वन कैन नेवर एक्सटिंग्विश इट. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. इन लाइफ every man has its own obligation. According to the author, every human being has its responsibilities towards the family as well as the society. In life, every man has his twin obligations. हर आदमी के पास दो obligations होते हैं. Each and every man who is born in this society has two twin obligations to be fulfilled. One obligation is towards one's family, while the other obligation is towards his society. So, obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and has an obligation to his people, his community. तो एक obligations उसके परिवार से है, उसके पेरेंट्स से है, अपनी वाइफ से है, उसके बच्चों से है. तो वहीं पे जो दूसरी उसका ऑब्लिगेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी कम्युनिटी से है, उसके अन्य भाइयों से है, उसकी कंट्री से है. जनरली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हम सब भी जानते हैं, सामान्यतया हम सब पहले ऑब्लिगेशंस को ही पूरा करते हैं.
हम उसी पे फोकस करते हैं। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. Author Mr. Mandela tells कि सामान्य स्थितियों में जो सामान्य जो सोसाइटीज़ हैं, इन दो सोसाइटीज़, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. हर आदमी अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस को अपनी इंक्लिनेशंस और अपनी एबिलिटीज के मुताबिक पूरा कर लेता है। जनरली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अ पर्सन कैन मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द टू। दोनों जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे वो उसकी फैमिली के प्रति हो और या फिर अपनी कम्युनिटी या अपनी कंट्री के प्रति हो, दोनों ऑब्लिगेशंस को सामान्य स्थितियों में आदमी पूरा कर लेता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये पॉसिबल नहीं लगता। इट इज नॉट पॉसिबल, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पॉसिबल की बात, we should not talk about possible. Here author is telling is almost impossible for a man of my birth, for a man, especially a man of my birth, for a man who is born in his community, in his race, the man who is born with his color, to fulfill both of these obligations. It is not possible for the man who is born in the race of Mr. Mandela to fulfill both those obligations. वो कहते हैं कि जो हमारी समाज में पैदा हुआ है, जो उनके समाज में पैदा हुआ है, ही वॉज अ ब्लैक पर्सन, तो उनकी रेस में जो लोग पैदा हुआ है, जो व्यक्ति पैदा हुआ है जिसका कलर ब्लैक है, उसके लिए दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल था, was almost impossible. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. Whom do you call man of color? Man of color, we all are colored men. Okay, well, those who were the white men, they were not considered the men of color. हम लोग colored people थे, जैसे black people. तो साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जो मैन ऑफ कलर थे, जो कि कलर सोसाइटी में पैदा हुए थे, जो ब्लैक पीपल थे, दे वर नॉट अलाउड टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग. उनको इंसानों की तरह जीवन जीना अलाउड नहीं था. इफ एनी कलर्ड पर्सन ट्राई टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ही वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. उसको पनिश किया गया. इट वॉज अ क्राइम फॉर द कलर्ड पीपल. कलर्ड पीपल के लिए सामान्य ह्यूमन बीइंग की तरह रहने का प्रयास करना ही अपने आप में क्राइम था. उसको पनिश किया जाता था, उसको आइसोलेट किया जाता था. इन साउथ अफ्रीका अ मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. साउथ अफ्रीका की स्थिति ये थी कि कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी कम्युनिटी के प्रति अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने का प्रयास किया, उस व्यक्ति को उसके समाज से, उसके परिवार से, उसके अपनी फैमिली के मेंबर से दूर कर दिया जाता था.
क्यों? क्योंकि उसको ये माना जाता था कि ये आदमी रेविलियन के रूप में सामने आ रहा है. इट इज अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेविलियन. So when a person of color and color would come up for his society, he would be arrested and taken away from his family, thus keeping them from fulfilling both responsibilities. इस तरीके से वो आदमी अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा एक साथ पूरा नहीं कर सकता था. I did not in the beginning choose to place my people above my family. लाइक एवरी पर्सन, हम सभी लोग बिगनिंग में क्या करते हैं, अपने परिवार को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. हमारा फर्स्ट ऑब्लिगेशन, हम मानते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑब्लिगेशन हमारा परिवार है. अगर हम अपने परिवार को मेंटेन करेंगे तभी हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे. ये हमारी सोच होती है. सो इन द बिगिनिंग Mandela also did not put his people over his family. मंडेला ने भी शुरुआत में अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को अपने परिवार के ऊपर नहीं रखा. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. But it was only later when he realized that in order to be there for his people, he was compromising his duties towards his own family. बाद में उसने महसूस किया कि अब जब वो अपने लोगों के प्रति अपने ड्यूटीज को पूरा कर रहे हैं, तब he was not allowed, he was prevented to fulfill his obligations as a son, as a brother, as a father or a husband. मतलब अब अपने फैमिली के प्रति अपने जो obligations हैं उनको पूरा करने के लिए उनको रोका जा रहा है. So in this way, students, we have done up to here. We shall continue this chapter in the next part of the video. Thank you. Have a nice day.